اس سٹوری میں، اس کہانی میں ہمیں جو کریکٹر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یونا کو اوپر خدا کا کلام نازل ہوا اور یونا جو ہے یہ نبی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے یونا ایک نبی ہے. ہم یونا کی زندگی کے بارے میں چند باتیں آج سیکھیں گے. یونا کی زندگی کا پہلا جو سیزن ہے، ہم تینوں سیزن اس کے ڈسکرائب کریں گے، لیکن پہلا سیزن جو ہے اس کی زندگی کا وہ ہے باغی، ریبیلینس. دوسرا اس کی زندگی کا سیزن ہے ریسٹوریشن، بحالی. اور تیسرا اس کی زندگی کا سیزن ہے بیداری. لیکن آج ہم پہلا اس کا سیزن، ہم ان کو اس کتاب کو 3 اتوار کے اندر سیکھیں گے. پہلا جو اس کی زندگی کا سیزن ہے وہ ہے باغی، بغاوت کرنا، نافرمانی کرنا، خدا کی نافرمانی، disobedient to God. میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نبی ہے لیکن یہ باغی ہے. یہ پروفٹ ہے اور یہ باغی ہے. یہ نبی ہے، اس سے خدا بولا ہے. خدا نے اس سے ایک پیغام دیا ہے، کلیئر ایک میسج دیا ہے کہ اٹھ اور اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر. ایک سمپل میسج ہے. میسج کیا ہے؟ مل کے بولیے. میسج یہ ہے کہ اٹھ اور اس بڑے شہر کہاں پر جا؟ نینوا کو جا. مل کے بولیے. اٹھ اور اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف جا کر منادی کر. یہ ایک بڑا سمپل میسج ہے. دس از ویری سمپل میسج. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا جب بھی کسی کو بھی پیغام دیتا ہے بڑا سمپل پیغام دیتا. اٹھ اور اس بڑے شہر نینوا کو جا اور جا کر اس کے خلاف منادی کر. اور ہوگا کیا؟ غور سے سنیے گا. خدا کیا آج صبح آپ سے کیا کلام کر رہا ہے؟ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم خدا کی آواز کی نافرمانی کریں گے، جب ہم خدا کی آواز کو سن کر اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ ہماری زندگی کے اندر تباہی پیدا ہوگی. کتنے لوگ ہیں جو خدا کی آواز کو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے؟ بڑی دفعہ غور سے سنیے گا، ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. یونا کے ساتھ بھی ایسا ہوا. مل کے بولیے. خدا کا کلام اس پر نازل ہوا اور اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا. اس بڑے شہر نینوا کو جا اور جا کر اس کے خلاف منادی کر. اس کے خلاف میں تجھے جو پیغام دیتا ہوں جا کر وہ سنا. Deliver the word of God. ہم سے کتنے لوگ ہیں جب آپ سے خدا بولتا ہے، کلام کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نینوا کو جانے کی بجائے اس نے کیا کیا؟ ترسیس کو چلا گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے الٹ ڈائریکشن اپنائی. خدا کی آواز کو سننا کافی نہیں ہے، خدا کے کلام کو سننا کافی نہیں ہے. میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام کہتا ہے کہ محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو. یاد رکھیے، اس نے خدا کی آواز کو سنا لیکن عمل
अमल ना किया। कितने लोग हैं इस चर्च के अंदर जो सिर्फ सुन रहे हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो कहते खुदा मेरे लिए ये भी कर दे, खुदा मेरे लिए ये भी कर दे, खुदा मेरे लिए ये भी कर दे, लेकिन खुदा बोल रहा है कि तूने पहले ये करना है। उसके ऊपर खुदा का कलाम नाजिल हुआ है और उसको पैगाम क्या है, उठ बड़े शहर नैनवा को जाओ। लेकिन ये आदमी बागी हो गया है, बगावत की है इसने खुदा की नाफरमानी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा की नाफरमानी करके कभी भी बाबरकत नहीं हो सकते। आप खुदा के कलाम को रद्द किए हुए कभी भी बाबरकत नहीं हो सकते। हो सकता है आप आवाज सुन रहे हैं और आप हरकत भी कर रहे हैं, लेकिन आप बाबरकत नहीं हो रहे। याद रखिए, बनी इस्राइल जब मिस्र से निकले वो आवाज सुनते और हरकत भी करते, लेकिन बाबरकत नहीं हो रहे थे, फ्रूटफुल नहीं हो रहे थे। वो मिस्र से निकल तो आए लेकिन खुदावंद की ताबेदारी नहीं कर रहे। आज बड़े लोग हैं जो आवाज सुन रहे हैं और हरकत भी कर रहे हैं। शायद वो चर्च में जा रहे हैं और शायद वो सोच रहे हैं कि चर्च में जाने से खुदा मुझे बरकत दे देगा, चर्च में जाने से शायद पास्टर मुझे आसमान पर ले जाएगा, चर्च में जाने से शायद मेरे हालात बदल जाएंगे। मैं आज सुबह आपके लिए पैगाम लेके आया हूं। बनी इस्राइल मिस्र से निकले खुदा की आवाज सुन के, लेकिन वो मुल्क कनान में नहीं पहुंचे क्योंकि वो नाफरमान थे। याद रखिए, बड़ी दफा लोग आवाज तो खुदा की सुनते हैं और हरकत भी करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं बदलते। अपनी दे नेवर चेंज। वो महसूस होते हैं दे आर स्पिरिचुअल, लेकिन वो अपने आप को चेंज नहीं करते। बड़ी दफा हम सुनते हैं, हरकत करते हैं, लेकिन बाबरकत नहीं होते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारा दिल खुदावंद के हुजूर का अमल नहीं है। आज सुबह शायद आप में से कितने लोग हैं जो काफी सालों से अपनी पोजीशन वहां पर ही खड़े हुए हैं। वो 10 साल से शायद इबादत कर रहे हैं, लेकिन वो वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन आज मैं आपको बात बताना चाहता हूं, खुदा बनी इस्राइल से कहता है, मैं चाहता हूं कि तू पूरे दिल से मेरी इबादत करे। खुदावंद उनके साथ हरकत करता है जिनके दिल अटेंशंस जबरदस्त होती है। यूना ने क्या किया? यूना ने सुना और यूना ने गलत जगह पर हरकत की। बनी इस्राइल ने हरकत सही जगह पर की, लेकिन जिंदगी चेंज नहीं। और कितने लोग जो अगर आप अंदाजा करें तो तकरीबन एक मिलियन लोग थे, 10 लाख लोग थे। और याद रखिए, उनमें से कितने लोग मुल्क कनान में गए? कितने लोग? हाँ? कितने लोग वहां पर गए मुल्क कनान में? इधर देखिए, जो मिस्र से निकले वो तकरीबन 10 लाख लोग थे, 1 मिलियन पीपल। जो मिस्र से निकले वो तकरीबन 10 लाख लोग थे। अब 10 लाख लोग अगर 40 सालों के अंदर मर जाए तो कितना बड़ा कब्रिस्तान होगा? 10 लाख लोगों का कब्रिस्तान किसी ने देखा? मुझे खुदा ने मौका दिया, मैंने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान देखा। मैं साउथ अफ्रीका के अंदर गया, वहां पर 5 मिनट गाड़ी चली, हम कब्रिस्तान में से गुजरे। कल मैंने देखा लाखों कब्रें थी, लेकिन वो 10 लाख कब्रें नहीं थी। इतनी देर गाड़ी चलती रही, लेकिन वो 10 लाख कब्रें नहीं थी। वो 1
लाख कब्रें थी। मैं आपको ये 10 लाख लोग मिस्र से निकले, ये खुदा की आवाज तो इन्होंने सुनी और खुदा की आवाज के मुताबिक ये हरकत भी कर रहे थे, खुदा की आवाज के साथ ये मूव भी कर रहे थे, लेकिन इनका दिल खुदा के हुजूर कामल नहीं था। आज सुबह मैं आपको टफ टाइम देना चाहता हूं। शायद आप हरकत भी कर रहे हैं लेकिन आपका दिल कामल नहीं है। और आप क्या होंगे कि शायद आप भी उन कब्रों की मानद। 10 लाख लोगों का मरना 40 सालों में क्या छोटी बात है? हाँ, ज़बूर 90 पढ़े, जो बाइबल से प्यार करते हैं ज़बूर 90 पढ़े। मूसा रो पड़ा। मूसा ने कहा, ऐ खुदावंद, हम जिस खेत में खड़े होते हैं, इधर देखिए, वो खेत ही कब्रिस्तान बन जाता है। जिस खेत में हम रहते हैं वो कब्रिस्तान में तब्दील हो जाता है। नाफरमान लोग हमेशा मौत पैदा करते हैं और खुदावन नाफरमानों से नफरत करता है। कितने लोग हैं जो खुदा की आवाज सुनते हैं, शायद गलत हरकत कर रहे हैं। यूना ने भी क्या किया? उसने खुदा की आवाज सुनी लेकिन उसने जो हरकत की वो खुदा के कलाम के उल्ट की। यीशु मसीह एक खूबसूरत दरख्त के पास गया और लिखा कि वो बड़ा हरा भरा था, ऐसा ही है ना, और लिखा सरसब्ज था, लेकिन उसमें फल, हाँ फल। हो सकता है आप बड़े ब्यूटीफुल नजर आते हैं, हो सकता है आप बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, हो सकता है लोग आपको जज नहीं कर सकते कि ये कैसा है, लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जिसकी आंखें आग के शोला की मानद है और जिसके पांव खालस पीतल के हैं और जो जिंदगी का खुदावंद है, जिसके सर पर बहुत से ताज हैं और जिसकी पसली के ऊपर नेजा है और जिसकी आंखें आग के शोला की मानद है और जो बादशाहों का बादशाह है, उसने देखा और उसने कहा कि ये तो सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, फल तो है ही नहीं है। आज कितने मसीही लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोई फल ही नहीं है। कलाम सुन रहे हैं, हरकत भी कर रहे हैं, लेकिन फल जीरो है। दरख्त किससे, पत्तों से पहचाना जाता है कि फलों से? हाँ, फलों से। कितने आज लोग हैं जो शायद ऐसे हैं, उनकी जिंदगी में कोई फल नहीं है। शायद वो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी पर गौर किया जाए तो वो क्या है? बेफल है। यूना ने खुदा की आवाज को सुना। आए पढ़ते हैं कहां से वो निकला। जिनके पास खुदा का कलाम है निकालिए। जब आप खुदा की आवाज से निकलेंगे आपको क्या क्या दुख उठाने पड़ेंगे, सुनिए। लेकिन यूना खुदावंद के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जानने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ। क्या देकर? सारे बोलिए, क्या देकर? याद रखिए, ये नाफरमान आदमी है। इस वक्त जब आप नाफरमान हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता कि आपने पैसा किस तरह खर्च करना है। यहां पर इसने किराया दिया है जहाज का। खुदा ने इसको पैसे इसलिए दिए हैं कि तू कहां पर जा, नैनवा को जा, लेकिन इसने क्या किया है कि खुदा के पैसों का गलत यूज किया है। इसने क्या किया है कि ये वही पैसे जो खुदा ने इसको अपने काम के लिए दिए थे, इसको खुदा ने ये नहीं कहा था कि तू जहाज पर बैठ और ये ऐसा कर। इसने क्या किया है? इसने खुदा का पैसा लिखा, इसने किराया देकर इसने क्या किया है? इसने खुदा के पैसे को गलत मैनेज किया है। जब खुदा, इधर देखिए, जब आप खुदा के नाफरमान हो जाएंगे आपकी जिंदगी उल्ट पुल्ट हो जाएगी।
और बेफल होगी और बेमकसद होगी और उसमें कोई भी बरकत नहीं होगी। और आप जहां पर भी जाएंगे आप नाकाम होंगे, आप जहां पर भी जाएंगे आप नाकाम होंगे, आप जहां पर भी जाएंगे आप नाकाम होंगे। आप जिन लोगों से मिलेंगे वो भी लोग नाकाम होना शुरू हो जाएंगे। यूना ने क्या किया कि यूना ने उस जहाज में बैठा, तूफान आ गया। नाफरमान लोग ना कि सिर्फ अपने लिए मौत पैदा करते हैं, जिन लोगों के साथ वो जुड़े होते हैं उनकी जिंदगियों के अंदर भी मौत पैदा कर देते हैं। इतने खतरनाक ये लोग हैं। इधर देखें, यूना किराया देकर उस जहाज में बैठा और उस जहाज में क्या आ गया? सारे बोलिए क्या आ गया? क्या मूल के बोलिए क्या हो गया? उस जहाज में तूफान आ गया और तूफान की जद में दूसरे लोग भी आ गए। जो नाफरमान आदमी है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने से साथ जुड़े हुए लोगों के लिए हमेशा तूफान बर्पा करता है। और जो लोग खुदा के साथ चलते हैं अपने साथ जुड़े हुए लोगों को वो हमेशा बाबरकत कर देते हैं।